Now, my dear students and those who are working in the wards and those who are preparing for membership examination and some of the fellowship examinations, and those who are learning basics in third year or fourth year, final year MBBS. Now this type of tutorial is for all of them, but focusing on the house officers which are actually in the problem of managing the cases. These are the 7th complication which I want to describe now. That is complication of cirrhosis for the house officer working in the ward session. It is hepatopulmonary syndrome. I am Professor S. Haider. I am Honorary Professor of Medicine, globally on the line, without any fame or without any economics. Be prepared to understand this. Remember that the liver is the essential for the life. There are 5 or 6 organs which are essential for life. Without these organs, life is not possible. And I repeat this sentence many times that 14 years ago, my Prophet, may peace be upon him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, has said that if any part of the body is in pain or is striped or in pathology, the other systems are affected as well. And this was a rule made by our Holy Prophet. This is correct. This is 100% correct. Because at that time that the medicine was not so much investigative and modernized, and they don't know about the human, but which is in the human, what are the parts of the in the body, and what are the functions, and etc. etc. They don't know about it. At that time, he said that, may peace be upon him, that if it is affected, then other systems are also affected. It means that if the liver is affected, then indirectly the other systems are affected. One system is pulmonary system, and that is called hepatopulmonary syndrome. And it is the essential diagnosis is this: with a triad of a liver disease should be present, probably in the cirrhosis or acute fulminant hepatitis. Secondly, there is a widespread interpulmonary vasodilation which causes this problem. Because the intermix, the vasodilatation means that the venodilatation and the arterial dilatation, both. If you dilate the vessel, it means that area is increased. If the area is increased, there will be pressure which will become low. When the pressure becomes low, much, then the oxygenation is not possible effectively. Therefore, the third one is the gas exchange abnormality presenting with the increased alveolar arterial oxygen gradient. Gradient means you minus it from the inspired air. So there will be increase the oxygenation from the inside the bronchioles. They are not crossing the alveolar membrane, and oxygenation is very, very affected. While breathing room air means that normally you are breathing in the room, and that results ultimately in hypoxemia. This is hypoxemia because of the lung which is affected. The lung is affected because of the liver. It's a unique thing. But it is definitely it is understood. You can understand it. Already mentioned out as previously the hepatorenal syndrome. So in medicine, the hepatopulmonary syndrome is a syndrome of shortness of the breath, clinically speaking. With hypoxemia, the levels PO2 or SpO2 will be decreased, caused by vasodilatation, rotting of the blood vessels in the lungs,
of the patient with liver disease. Liver disease affecting the lungs. How? We will discuss. There are theories that say that neurohormonal are there is a connections. There are substances which are releasing from this, and they are connecting the vessels, and the plexus is formed, etc. There are many theories. Dyspnea and hypoxemia are worse in the upright position. This is the unique thing about it. And this is called the platypnea with orthodeoxia, respectively. So, what do you mean by orthopnea? Orthopnea means if you lie straight on the bed, there is difficulty in breathing. It is the hallmark of the left ventricular dysfunction. What is tachypnea? On the one side, if you turn to the one side, during lying position, there will be a shortness of the breath. It can occur in cases of the left ventricular dysfunction as well as in cases of the pericardial effusion. Platypnea is the condition in which if you will in a 90-degree angle on the bed, straight on the bed, when you feel dizzy. It can occur in a very obese person. It can occur in cases of the wall weakness. For example, it is also seen in rickets. So the platypnea in this condition occur because of the diaphragm. Now, diaphragm, if you on 90-degree angle, the thorax, the thoracic cavity become small. Now, on the other hand, there is, the communications are there between the vessels, and there will be vasodilation in the pulmonary vasculature, which causes the hypoxia. And this hypoxia is called the orthodeoxia, means the position is ortho. Ortho means in the 90-degree angle. So the platypnea plus orthodeoxia. And this is the new terminology for many of us. तो कहते हैं ना कि आप अगर पढ़ते रहें तो आपको नई चीज़ें मिल जाती हैं. वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि पहले कभी बताई नहीं गई. इसलिए जो है ना, ये हमारे लिए भी बड़ी अजीबोगरीब बात है. 4 लाइनें लिखी हैं हैसन में सिर्फ इस पर, सिर्फ 4, क्योंकि उन्होंने डिस्कस नहीं किया उसको डिटेल में, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने चैप्टर बहुत बड़ा लंबा हो चुका था, उसको डिस्कस नहीं किया. मगर जो हम डील कर रहे हैं ना पेशेंट, हमें तो ये अगर किसी को हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम होगा तो फिर हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए उसके बारे में, भाई क्या है ये चीज़. तो उन्होंने लिखा ये जो रिसर्चर्स का है ये कि पैथोफिजियोलॉजी पॉसिबल क्या हो सकती है कि हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन of the microscopic interpulmonary arteriovenous dilation in a patient with the chronic and far less common acute liver failure. It can occur in the pre-cirrhosis and acute fulminant hepatitis. The mechanism unknown, but is thought to be due to the increased unknown hypothesis. It is hypothesis that the increased liver production or decreased liver clearance of the vasodilators, which should be catabolized by the livers, are possibly causing this problem, possibly involving the nitric oxide, which will be released, and it is a very powerful vasodilator along with the prostaglandins. There are 2 types of prostaglandins, one are vasoconstrictors and another one is the vasodilators. The dilatation of these blood vessels causes the overperfusion relative to ventilation, because the blood increases now because of the vasodilatation, and the oxygenation across the membrane chances are less. This mismatching occurs, therefore. It is called the ventricular perfusion mismatch, just like in pulmonary embolism. The same thing occurs. And hypoxemia. There is an increased gradient between the partial pressure of oxygen in the alveoli of the lung and the adjacent arteries. There you manage it with the it is PO2, which we said PO2, the oxygen in the blood, to the inspired air.
This gradient is definitely increased. And the breathing room air, not with the oxygenation, it means through the cylinder, but rather in the breathing room air. Patients with this syndrome have platapnea, orthodeoxia syndrome, which I have just explained it. This is because the interpulmonary vascular dilations predominate in the basis of the lungs, tending worsen this hypoxemia, that is orthodeoxia, dyspnea, platapnea, and the supine position, improves the oxygenation, and the blood is redistributed from the basis to the passage. So the other parts of the lungs are will take part in the oxygenation. Well, when these patients try to lie down without pillow, they are comfortable. तो इन कंडीशन में जो है ना, आप बताएं पेशेंट की भाई पोजीशन क्या रखनी है. वहाँ पे तो 2-2, 3-3 तकिए लेके पड़े होते हैं. भाई पहले ये उनको हटा दें उस तकियों को, और अगर आप बेड साइड को थोड़ा सा अपर कर दें तो और अच्छा हो जाएगा. बेड साइड का मतलब ये हुआ कि बेड की वो जो साइड है जिसमें आप पाँव रखते हैं, मतलब वो जो लोअर लिम्स जहाँ पे होते हैं, वो उसको हायर पोजीशन दें, 20 डिग्री 10 डिग्री ऊपर कर दें. Additionally, late in cirrhosis it is common to develop high output failure. इसमें होता है output failure होता है, which could lead to less time in capillaries per red blood cell exhibiting the hypoxemia because of the vasodilatation occur due to the nitrous oxide and nitrates and prostaglandins. So the stake is on the left side of the on the heart, and they have to push the blood very quickly. The high output cardiac failure occurs in this condition, and that is why. Severe anemia is another example. AV fistula is another example. Thyrotoxicosis is another example. These are few examples. Another most important example for this is the severe aortic regurgitation. The pulmonary microvascular dilation and the angiogenesis are two central pathogenic features, because this is the compensatory angiogenesis that drive abnormal pulmonary gas exchange in the experimental hepatopulmonary syndrome, and this might underlie hepatopulmonary syndrome in humans. On animals, it is proved that if you will dilate microvasculature of the lung, the new vessel will form just like in the retina and other organ as well. They are reading this thing as a hypoxia, and hypoxia will lead to the angiogenesis, and this is, or shunting of the blood will lead to the angiogenesis. The vasodilators, the exact pathogenesis of the hepatopulmonary syndrome is not completely understood. It is thought that the hepatopulmonary syndrome is the result of the microscopic intrapulmonary AV dilatation due to either increased liver production or decreased liver clearance of the vasodilators, probably the nitric oxide. ये बार-बार इसका जिक्र आएगा. So the progression in the hepatopulmonary syndrome is believed that involves the nitric oxide metabolism. ऐसा आदमी जिसको हार्ट डिजीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, आप उसको नाइट्रेट भी दे रहे हैं, पहले ही नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा है उसमें मौजूद है, तो फिर और वर्ष हो जाएगा वो. तो आप इसी को ऐसे वक्त डायरेक्टर ना दें जिसके अंदर जो है नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स हो. इसका मतलब ये है. The progression of the hepatopulmonary syndrome is believed that involves the nitric oxide metabolism. Of course, the dilation of these blood vessels causes the overperfusion related to the ventilation. यानी overperfusion हो जाएगा ना, जब जाहिर बात है आप ब्लड वेसल्स एंजियोजेनेसिस भी कर रहे हैं, वासोडाइलेशन भी कर रहे हैं, सारी तरफ ब्लड ही ब्लड है, इज फुल ऑफ द ब्लड. हाउ कैन इट पिक? जो एक हमारा सिस्टम है बॉडी का, ऑक्सीजनेशन आप लेते हैं जो इंस्पायर्ड FiO2, वो उस काबिल नहीं रहती बेचारी, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा वहाँ पे. वो कहाँ किस तरह से ऑक्सीजनेशन करेगी? बिकॉज एल्वेला के ऊपर तो इतना स्ट्रेस आ गया है, एल्वेला ऑफ द लंग पे, कि एडजेसेंट आर्टरीज के अंदर जो ग्रेडियंट जो है ना वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन द रूम एयर.
A patient with the hepatopulmonary syndrome have what is called the पैथोपनिया ऑर्थोडिऑक्सिया सिंड्रोम। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है अभी आपको समझाया है कि क्या चीज़ होती है, कोई और कंडीशन में भी होती है, ये भी बताया। एडिशनली लेट इन सिरोसिस इट इज़ कॉमन टू डेवलप द हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, वो भी इसको वर्स करेगा बिकॉज ऑफ द वासोडाइलेटेशन एंड द ब्रंट of this is on the left side of the heart and heart has to pull the blood, यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, उसको पुश करना पड़ेगा, ब्लड को ज़्यादा पुश करेगा तो हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, तब जाके वो कंपनसेट करेगा, वरना वो कार्डियक फेलियर में चला जाएगा। वो भी इसमें पार्ट है। एंजियोजेनेसिस को मैंने डिस्कस किया अभी आपको, ये रूल है, याद रखिएगा। और एनिमल में तो ये प्रूव किया गया है, लेकिन हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम में भी इससे रिलेट किया गया है इसको। असल में जो इंक्रीज लेवल ऑफ एंडोथेलिन 1 in cirrhotic patients have been correlated with the intrapulmonary molecular and gas skin abnormalities, hypothesizing a probable contribution to pathogenesis of hepatopulmonary syndrome, यानी एंजियोजेनेसिस कराने के लिए एंडोथेलिन 1 को उन्होंने करार दिया है कि ये सब्सटेंस है, प्रोबेबली इन्वॉल्व होता है न्यू जेनेसिस के लिए, न्यू एंजियोजेनेसिस के लिए। एसोसिएटेड कंडीशन जो वर्स करती हैं इसको, वो ये है अल्कोहलिक लिवर डिजीज, सिरोसिस ड्यू टू द वायरल डिजीज, एनी वायरस, बी वायरस, सी वायरस, एक्यूट फर्मिनेंट फेलियर भी लगाएं यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है वो, एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, नैश जिसे आप कहते हैं, और उसके बाद डैश और नैश, टॉक्सिन एंड ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज, विल्सन्स डिजीज, हेमोक्रोमेटोसिस, autoimmune disorders such as autoimmune hepatitis, primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis, इसमें वर्स हो जाएगा। अल्फा-1 एंटीटॉक्सिन डिफिशिएंसी का भी यही मसला है, वो भी सिरोटिक करती है कंडीशन को, और उसमें भी यही फिनोमेना होता है। और इसी तरह ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोलिडोकोलिथियासिस दैट इज, उसमें भी ये बैक प्रेशर के जरिए ये सारा फिनोमेना वजूद में आ जाएगा। जो मैंने आपको पहले थ्योरी बता दी थी कि हमारे अपने जो पैगम्बर हैं उन्होंने 1400 साल पहले बता दिया था कि अगर एक जगह भी आप जो है ना वो हो गया, पूरी बॉडी इफेक्टेड होगी, तकलीफ नहीं हो जाएगी। ये आपको पहले बता दिया है, ये बिल्कुल रूल है जी, 1400 साल पहले बता चुके हो, और ये आप प्रूफ आप कर रहे हैं इसको उठा के। मतलब है कि जो लोग नहीं समझते इस बात को, उनको इस पर ईमान लाना चाहिए। उन्होंने कैसे बताया, कॉन्फिडेंटली बताया है, क्यों, कैसे? इसलिए कि उनको ऊपर से अल्लाह ने बताया है, तो उन्होंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो हेपेटोसेलुलरी कार्सिनोमा भी इसी जुमरे में आएगा, वो वर्स करेगा। तो ये तैयार रहे इन डिजीज़ में। अगर कोई पेशेंट आपके पास आ गया है, तो अगर हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम हो जाता है, तो फिर ये ट्रायड बनेगा कि लिवर डिजीज़, दूसरी तरफ एविडेंस ऑफ द इंट्रापल्मोनरी वास्कुलर डायलेशन ऑफ आर्टरियोवेनस कम्युनिकेशन, द रिजल्ट टू राइट टू द लेफ्ट इंट्रापल्मोनरी शंट, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। फिर वाइडेंड एज करेक्टेड एल्वुलर आर्टेरियल ऑक्सीजन ग्रेडियंट ऑन रूम एयर, जिसको मैंने पहले कहा था कि FiO2 इंस्पायर्ड एयर है, और PO2 जो कि अंदर है मौजूद वेसल्स में, पल्मोनरी आर्टरी में कि वेस्कुलेचर में, उनका ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, तो उसके लिए ऑक्सीजनेशन जो होगा मास्क हो जाएगी। इसी को कहते हैं फिर हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। इसके पीछे थ्योरीज हैं, थ्योरी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हाइपोथेसिस ज़्यादा है। एनिमल में तो प्रूफ किया गया है, ह्यूमन में प्रूफ नहीं है, लेकिन बहरहाल हम मान लेते हैं इसको, यही होता होगा, डेफिनेटली इसी तरह होता होगा। अब ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है ना, उसको प्लेटेपनिया ऑर्थोडिऑक्सिया सिंड्रोम, ये आप याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि ये मैंने इसके क्या हैं, और कहीं बात हो जाए तो आप समझा सकें, वजह बयान कर सकें। ये मैंने पूरी तफसील से बता दिया है कि अगर आदमी बैठा हुआ है तो ये तो ज़्यादा तकलीफ में क्यों हो जाएगा, बैठने से तो तकलीफ अच्छी हो जानी चाहिए थी उसकी, नहीं। इसमें लेटने में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेटेंगे तो फ़ायदा होगा आपको, और अगर टांगे ऊपर कर लेंगे तो और फ़ायदा होगा। वर्स इसकी जो है वो ऑर्थोपनिया है, और ऑर्थोपनिया अगर आप करेंगे वो ज़रा भी लेटेगा, वो लेट ही नहीं सकता।
लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है और टैपअपनी वो कंडीशन है जो लिटल पोजीशन के अंदर अगर ब्रेथलेसनेस हो जाए तो वो होती है एलवी डिसफंक्शन में भी होती है, सीसीएफ में भी होती है, और इसके अलावा वो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में भी होती है। अब फिर इसको जो है ना एलिबरेट किया है इन्होंने कि भाई अगर ये चीज़ आपने मान ली थी वासोडाइलेटेशन हो जाता है तो फिर क्या करें कि आप वासोकंस्ट्रिक्टिव सब्सटेंस दे के देखा इन्होंने कि क्या होता है। तो बिफोर नॉन-एपिनेफ्रिन ये वासोडाइलेटेशन है, ये कम्युनिकेशन है, ये दिखाया इन्होंने, हार्ट पर लोड दिखाया। और अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जब नॉन-एपिनेफ्रिन दे दी है वासोकंस्ट्रिक्टर तो वेसल्स का साइज नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल होने से फ़ायदा हुआ कि हार्ट पे जो लोड है वो ज़ाहिर है कि कम हो गया और उससे बेहतरी पैदा हो गई वासोकंस्ट्रिक्टर देने से। ये प्रूव हो गया कि इसका मतलब है कि वासोडाइलेटेशन प्रॉब्लम है। वो क्यों हो रहा है वासोडाइलेटेशन? बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ द एंजियोजेनेसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें यही है कि एक पेशेंट है जिसके अंडरलाइंग डिजीज मौजूद है एंड दैट इज सिरोसिस ऑफ द लिवर। वो जो होता है वो जब एंड स्टेज में आता है तब ये कंडीशन आती है, उसको प्लेटिपनिया के साथ डी ऑक्सिया हो जाता है, यानी ऑर्थो डी ऑक्सिया हो जाता है, और उसकी रीज़न मैंने एक्सप्लेन किए बहुत तफसील के साथ। लेकिन इसके अलावा भी ये कंडीशन दूसरी हैं जिनमें भी पॉसिबिलिटी हैं, एक्यूट परमानेंट फेलियर में भी होती है, एक्यूट परमानेंट लिवर फेलियर में भी होती है। इसके अलावा मैंने और भी कंडीशन बताई थी आपको जिनमें वीकनेस ऑफ द मसल्स हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पे जो है मायोपैथी सीवियर हो किसी को और वो इन्वॉल्व कर ले एब्डोमिनल मसल्स को, या वो डायफ्राम की खुद अपनी डिजीज़ हैं उनमें भी हो सकता है ये। और इसके अंदर ग्रेडियंट हमेशा जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। ये जो है ना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, पेशेंट को चैन नहीं आएगा, वो बैठा रहेगा, जैसे वो बैठेगा तकलीफ बढ़ जाएगी, और जैसे वो लेटेगा तकलीफ खत्म हो जाएगी और बेहतर हो जाएगा। तो ये पोजीशन है तो पेशेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम इसीलिए लोगों को जब गाइड कर रहे होते हैं कि भाई आपको किस तरह लेटना है, लेटना भी हमें बताना पड़ता है। इस मुल्क में हर चीज़ को बताना पड़ती है और अच्छी तरह समझानी पड़ती है। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, वो नहीं बताता, तो मरीज़ को तो कुछ भी नहीं पता, आपने क्या फ़ायदा दिया पेशेंट को। ये तो 50% तो रिलीव वैसे ही हो जाएगा ना। वो तो आप इससे पहले कि आप वो करें, मैनेज करें इसको। टाइप्स ऑफ द हेपेटाइटिस पल्मोनरी सिंड्रोम ये है कि टाइप 1 जो है उसमें डिफ्यूज पल्मोनरी वास्कुलर डायलेटेशन होता है एट द प्रीकैपिलरी लेवल क्लोज टू द नॉर्मल गैस, ये बिल्कुल एल्वेओलर मेम्ब्रेन के पास होता है टाइप 1। वेयर द टाइप 2 लीजन आर मोर डिस्क्रीट होता है, लोकलाइज डायलेटेशन है, एक्चुअली लार्ज हेवी शंट्स हैं या कम्युनिकेशन है, दे आर डिस्टेंट फ्रॉम द गैस एक्सचेंज यूनिट, ये बाहर होते हैं उससे, यानी पल्मोनरी पैनोकामा के अंदर में होते हैं, राइट। सो इधर टाइप 1 लीजन अलग हैं, ज़्यादा यानी प्रॉब्लमेटिकल हैं। टाइप 2 लीजन से जो कि डिस्क्रीट हैं, लोकलाइज डायलेटेशन है, उनमें ये प्रॉब्लम इतनी वर्स नहीं है। इसका भी टाइप 1 है, इसका भी टाइप 2 है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे इसके अंदर, क्या कराना है कि लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं, पूरा लिवर को सारी डिजीज़ को आप वो करें, एवोल्यूट करें, और फिर इसके बाद इसके अंदर इसके स्पेसिफिकली अगर आप जाएं तो कंट्रास्ट इनहांस ट्रांसथोरेसिक echocardiography with agitated saline is the most specific test for the diagnosis। जब इसको करते हैं तो उनको बबलिंग इफेक्ट मिलते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी डायलिटेशन हो रहा होता है इसके अंदर। तो कंट्रास्ट देने के बाद पता चलता है कि इसके अंदर बबलिंग होगी शुरू होगी सलाइन के साथ जब देते हैं, तो ये आपको क्लियर कर देता है कि ये है। अगर आपके पास फर्ज करें ये इन्वेस्टिगेशन मौजूद है तो among the patient who present the clinical sign of the hepatopulmonary syndrome, EBG जो है ना इज बेस्ट जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन है एट द बेड साइड लेवल रादर देन SpO2 की वो गलती भी उसमें गलती के इम्कान हैं। हाँ, आप इसके लिए ये है कि उसको मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स क्या हुए कि द फॉलोइंग फाइंडिंग्स आर कंफर्मेटरी एंड हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, प्रेजेंस ऑफ द बबल्स on the left heart in contrast and transthoracic echocardiogram with agitated saline. This is the hard data of this investigation. Confirmed करता है ये. Presence of the radioactivity in the left heart
तो टेक्निकल 99 में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हार्ट की एक्टिविटी जो है ना उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत हायर एक्टिविटी आपको नज़र आएगी विद मैक्रो एग्रीगेटेड एल्ब्यूमिन स्कैनिंग के साथ करेगा। फिर एक और इन्वेस्टिगेशन डिफ्यूजन डिफेक्ट इन द आर्टीरियल गैस एनालिसिस पर्टिकुलरली स्टडिंग। तो डिफ्यूजन डिफेक्ट्स आपको मिलेंगे ईबीजीज के अंदर जो आप कराते हैं। एबनॉर्मल लिवर तो है ही, वो तो आपने पहले ही करा लिया था। और एबनॉर्मल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट अगर आप करते हैं तो उसमें वो नॉर्मल तो नहीं आएंगे, वो रिस्ट्रिक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव होने चाहिए। वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर बात है कि ये कंडीशन जो ऑक्सीजनेशन ही नहीं दे पा रही है तो रिस्ट्रिक्टिव टाइप की डिजीज़ हो गई है। इसका मतलब होगा ये प्रीडोमिनेंट रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ होगी अगर आप कराएं। अगर भाई इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन कराने से बेहतर है कि आप क्लिनिकली इसको जज करें, उससे आपको पता चल जाएगा ये हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम है। और आप अगर देख लें इसको मजीद देने के लिए आप वासोकंस्ट्रिक्टर दे के देखें कि कितना रिलीव हो जाता है, तो उससे भी कंफर्म कर सकते हैं। थेरेपेटिक ट्रायल नेचुरल हिस्ट्री है कि अगर ये लास्ट स्टेज होती है, ये याद रखिएगा, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, हेपेटोरीनल सिंड्रोम, ये जितनी चीज़ें भी हैं और भी हैं, ये आखिरी स्टेजेस होती हैं। इनकी जो है मीडियम सर्वाइवल बहुत कम है, 2.5 ईयर्स है, इससे ज़्यादा नहीं होगा अगर आप मैनेज करें सही तरह से। तो मतलब ये तो कहने का ये है कि डिग्री ऑफ द आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया अपीयर्स टू इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल एक्चुअली। अब आप कितने दिन तक हाइपोक्सीमिक पेशेंट को रखते हैं, हाइपोक्सीमिया क्या करेगा कि वो इरिथ्रोसाइटोसिस करेगा, इरिथ्रोसाइटोसिस करेगा तो हाइपर विस्कोसिटी होगी, हाइपर विस्कोसिटी होगी तो और ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। फिर दोबारा हर जगह जहाँ पे भी हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम्स के प्रॉब्लम्स हैं शुरू हो जाएंगे और लंग के अंदर तो और वर्स और ख़राब हो जाएंगे। इसलिए ये जो होता है डाउन जाती है, हिल कोर्स जाता है फॉरन। अगर आपने नहीं किया तो वो मीडियम सर्वाइवल जो आप कह रहे हैं 2.5 to 3 ईयर्स होता है वो नहीं हो सकेगा, मुश्किल से कुछ दिन तक ही जिंदा रहेगा बस। फिर अगर वो आप बेहतर कर देते हैं, आप वाजो कंस्ट्रक्टर्स देते हैं, आप चीज़ें देते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, जैसे जनरल मैंने आपसे पहले भी बताया था, आप लिखें जनरल मेजर्स, फिर लिखें स्पेसिफिक मेजर, फिर लिखें आप सिम्टोमेटिक मेजर, फिर उसके आगे लिखें प्रिवेंटिव मेजर, फिर आगे लिखें डाइटरी मेजर, फिर आगे लिखें लोकल मेजर, फिर आगे लिखें सर्जिकल मेजर। अब इसको भरें, जहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो रहा लिख दें NA नॉट एप्लीकेबल। तो आप जो इस्तेमाल करते हैं वो रिस्ट टाइप का जो है ना इस्तेमाल करते हैं ताकि ये लगा रहे, आपके सामने नज़र आता रहता है कि 98% है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो है SpO2 जो है और उसके साथ ये हार्ट रेट भी दे रहा है, BP को भी देता है ये। तो पल्स ऑक्सीमीट्री जो है अच्छी वाली जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के लिए और उसको बता देते हैं कि भाई 80% तक आ गया है या 90% से भी नीचे जाए, ओवर डिजनिंग हो जाए सिम्टोमेटिकली। और 80% पे अगरचे वो समझता नहीं है कि इतना डिजनिंग का, लेकिन फिर भी आप जो है ना सप्लीमेंट ऑक्सीजन देंगे, आपको लगानी पड़ेगी इंटरमिटेंट, और फिर उसको आहिस्ता 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 वीनिंग करना है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वर्ल्ड वाइड जो है आप तक ये है, मेडिकली में नॉन प्रूवेबल इफेक्ट है। कोई ड्रग आप देंगे तो वो वर्स कर देगी, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वासोकंस्ट्रिक्टर देते हैं तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, तो वो भी नहीं कर सकते आप। एक लेवल तक तो कर सकते हैं, बिल्कुल ही ICU में पेशेंट चला गया तो वहाँ पे उसको जो है ना वो सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा है तो वहाँ तो आप डोपामीन है, डोपामिन है, नॉरपेफ्रिन है और दूसरी चीज़ें दे सकते हैं, उधर और बात है। पैलिएटिव थेरेपी में क्रोनिक ऑक्सीजन थेरेपी या एम्बोलाइजेशन और ईवी शंट्स अगर कोई करते, आजकल वास्कुलर सर्जरी बड़ी अच्छी होती है, एम्बोलाइज करके वो शंट्स को बंद कर दें जो इंट्रा पल्मोनरी हो रहे हैं, इस पर वर्क किया जा रहा है। की पॉइंट क्लाजुअल ट्रांसप्लांटेशन के डेफिनेटली ये ही चीज़ है कि लिवर को ट्रांसप्लांट कर देंगे जो खुद ब खुद ही ठीक हो जाना है। अगर ऑप्शन आपके पास आ रहा है किसी भी सवाल में इसी यानी इस जुमले में, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज द आंसर। अगर वो आप कर देते हैं तो रिजॉल्व कर सकता है डिजीज़ को, काफ़ी बेहतर कर सकता है। इसीलिए जो है ना वो इसको जो है ना ऑप्ट किया जाता है, ज़्यादातर कोशिश की जाती है। अब फ़र्ज़ करें कि आप इसके अलावा जो है ना दूसरे शंट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें प्रॉब्लम मैंने पहले भी बताया था कि हाइपरटेंसिव इनकैफेलोपैथी के चांसेस बढ़ जाएंगे और इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी।
फिर उसके बाद जो है ना आगे जाएंगे आप, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांटेशन हाइपोक्सिया सीवियर की बात करते हैं आप। तो उसके अंदर जब आपने कर तो दिया, अब उसके बाद जब होगी सर्जरी तो लैंडबर्ग पोजीशन यानी टांगे ऊपर रखनी है, बेड का जो हेड साइड नीचे रखना है, इनहेल्ड एपोप्रास्ट्रॉल ये जो है वाज़ोकंस्ट्रिक्टर ये भी देना है, इनहेल्ड नाइट्रोस ऑक्साइड देनी है, इनहेल्ड की बात हो रही है। खाली लंग पे इफेक्ट करे यानी लंग के अराउंड इफेक्ट करे, इंटरना पैरेन्काइमल ना करे, वो इंटरवेनस मिथिलीन ब्लू है, एम्बराइजेशन एविशंस हैं, और इसी तरीके से दूसरी जो है ना वो कंडीशन है। तो पोस्ट जो है ना लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो सीवियर होता है, अगर उसको आप मैनेज कर लें काफ़ी दिन तक तो पेशेंट बेहतर हो सकता है। ये लास्ट मेरा मैसेज है इस सिलसिले में। तो इसके अंदर आप कर नहीं सकते, आप इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ऑक्सीजनेशन देंगे, दे यहाँ लिखा हुआ है ये। और कोई हीरोइक अटैम्प मत करें, हीरोइक अटैम्प करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात जो थी मैंने की है हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम पर, जो मैंने आपसे पहले कहा है कि जो बड़ी बुक्स भी जो हैं उनने 4-5 लाइनें सिर्फ लिखी हैं, फिर उन्होंने ये नहीं समझाने की कोशिश की है कि ये प्लेटोपनिया और ऑर्थोडीऑक्सिया क्या चीज़ होती है, क्यों होती है, क्या होती है, इसको मैंने यहाँ क्लियर कर दी है। तो जो वार्ड में काम कर रहे हैं लोग इसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा वीडियो देखें और उसके बाद अंदाज़ा लगाएं कि भाई इससे कुछ आपकी एफिशिएंसी में बेहतरी आती है। क्योंकि जो लोग बाहर के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको तो ये पढ़ाई का वास्ता है इससे बहुत ज़्यादा। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। आई डोंट नो अबाउट इट। वमा अलैना इल्लल बलाग, वी विल मीट अगेन इंशाअल्लाह ताला।